अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आपके लिए एक केस मैंने प्रिपेयर किया जिसको मैंने इमरजेंसी में देखा था और डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल करके मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। केस नंबर 18 हो गया ये आपका, ठीक है। A 70-year-old man presented in the emergency room with complaints of difficulty in swallowing, both for liquids and solids, since 2 months. He also complained of feeling of food stuck behind his chest and sometimes regurgitation of food. He also complains of cough off and on since 2 weeks. He lost 5 kg weight within 2 months. He had history of hypertension and diabetes since 10 years. There was no history of asthma or ischemic heart disease. On examination, he had anemia and dehydration. Blood pressure was 130 by 80 mm of mercury. Pulse was 86 per minute. Respiratory rate was 18 breaths per minute. Chest was clear. Abdomen was soft and non-tender. CVS S1 and S2 audible in all 4 areas, and his CNS examination was normal. On laboratory investigations, his hemoglobin was 11 milligram per deciliter. MCV was 80 femtoliters, TLC was 7,500 per cubic millimeter, platelets 3,40,000 per cubic millimeter, urea was 55, creatinine 1.3 milligram per deciliter, sodium was 131 यानी hyponatremia था उसको, potassium was 3.5 milliequivalent per liter, chloride was 99, bicarbonate 24, LFTs were normal, urine DR was normal. Chest X-ray showed right basal infiltrate. ECG was normal, ultrasound abdominal was also normal. Then I ordered for upper GI endoscopy, and upper GI endoscopy revealed erythematous esophagus mucosa. Stomach showed normal mucosa with reflux, signs consistent with esophagitis. Esophageal biopsy was taken, and later on it report shows no malignancy. Only morphological change was consistent with esophagitis. Then we went asked for CT scan of the chest, and it showed evidence of focal segmental circumferential thickening of the distal esophagus and gastroesophageal junction, measuring 0.7 centimeter in thickness and approximately 0.6 centimeter in length, resulting in mild proximal esophageal dilatation and mild hold up of oral contrast. Stomach was completely. Atelectasis is was present the right middle lobe, lingular and left lower lobe with multiple pulmonary infiltrates. No evidence of any mass metastasis, lymphadenopathy or effusion. The rest of the scan was normal. अच्छा, इसका फिर ना इससे पहले बैरियम स्वालो कराया था मैंने, तो बैरियम स्वालो में जो है वो एसोफेगस प्रॉक्सिमल पोर्शन वाज डायलेटेड, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जहाँ पे ना वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बीक अपीयरेंस हो जाती, तो बीक अपीयरेंस थी इसकी, ठीक है। तो वो डायग्नोस्टिक होता है, या तो फिर आप एसोफेजियल मैनोमेट्री करा के देख लेते हैं। फाइनल डायग्नोसिस फिर इसकी बन गई एक्लेजिया, यानी कि इसको जो है डिस्टल एसोफेगस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन there was circumferential thickening or approximately 0.6 centimeter in length, resulting in mild proximal esophageal dilatation, ठीक है। तो हमारी डायग्नोसिस बन गई एक्लेजिया। अच्छा, इतना टाइम मुझे नहीं मिल सका कि मैं आपके लिए एक्लेजिया लिख पाती, तो एक्लेजिया जो है ना वो मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। एक्लेजिया जो है बहुत ही रेयर होता है, ज़्यादातर हमें एक्सक्लूड करना होता है मैलिग्नेंसी को, यानी कि लोअर एसोफेगस की मैलिग्नेंसी या फिर अपर गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन यानी कि स्टमक का जो अपर एंड है उसकी मैलिग्नेंसी ज़रूर एक्सक्लूड कर देनी चाहिए। और जो है मतलब होता क्या है एक्लेजिया में कि जो गैंग्लियन सेल्स हैं, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स माइंटेरिक प्लेक्सस में, जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, तो उसके गैंग्लियन सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि ऑटो इम्यून एट्रोफी हो जाती है। वो देखा गया है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकती है, या फिर जिनको जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो, तो रेयर डिजीज़ है, यानी कि 1 to 3 पेशेंट्स को इन 1 लाख पॉपुलेशन ये हो सकता है।
और गैंग्लियन सेल्स में दोनों टाइप के सेल्स होते हैं जो डैमेज होते हैं। एक तो होते हैं कोलिनर्जिक और दूसरे होते हैं मतलब एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक हैं, और जो रिलैक्सेशन वाले हैं इनहिबिटरी वो होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो होता ये है कि जो रिलैक्सेशन वाले नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जब होता ही नहीं वहाँ पे, तो जब हम खाना निगलते हैं तो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना वो रिलैक्स नहीं होता और वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से जो है एक्लेसिया हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जो है ना जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुई वो क्या क्या हो सकती है। एक तो आप सबसे पहले मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड कर लें, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस की और अपर एंड ऑफ स्टमक की। फिर डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज़म हो सकता है। फिर शागाज डिजीज़ हो सकती है जिसमें जो रेटोविक बग होता है उसके अंदर से ट्राइपोसोमा क्रूजी जो है ना वो आके डिस्ट्रॉय कर देता है सारे गैंग्लियन सेल्स, तो उसके इंक्लूडिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कार्डियक सेल्स, इन सब के वो अफेक्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है सूडो एक्लेजिया। अच्छा, ये जो है एक्लेजिया यानी कि ट्रू एक्लेजिया, इट इज़ कॉमन बिटवीन एजेस 26 टू 60 ईयर्स ऑफ एज, और जो लेटर एजेस हैं उनमें जो है ना सूडो एक्लेजिया भी आपको एक्सक्लूड करना चाहिए। और क्या होता है, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज़म हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई, शागाज डिजीज़ हो गई, जैक हैमर एक एसोफेगस वो भी होता है। अच्छा, फिर इसमें आप इसको ट्रीट कैसे करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे हमने ये सीटी स्कैन कराया तो उसके काफ़ी एंटीलैक्टेसिस और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे थे, पेशेंट को खांसी भी थी, लेकिन चेस्ट उसका जैसे ऑस्कल्टेशन में इतना कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, यानी कि डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स थे। तो इन पेशेंट्स में रिगर्जिटेशन की वजह से एस्पिरेशन हो जाती है, तो फिर रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकता है। ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट जो है ना या तो फार्माकोलॉजिक या फिर सर्जिकल। फार्माकोलॉजिक तो इतनी कोई इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन उसमें हम ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जिससे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए। तो उसमें जो ड्रग्स आप दे सकते हैं वो नाइट्रेट्स होती हैं, यानी कि नाइट्रेट बिफोर मील्स 3 टाइम्स आप देते हैं, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, या फिर फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स यानी कि सिल्डेनाफिल वो भी दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो तक प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसकी। अच्छा, फिर सबसे इफ़ेक्टिव जो है इसका ऑपरेशन वो हेलर्स मायोटोमी होती है, फ्लेक्टोस्कोपी इससे भी मेरा ख्याल हो सकती है, और उसमें ये है कि उसके साथ एंटी रिफ्लक्स प्रोसीजर यानी कि फंडोप्लाइकेशन वो भी कर दी जाती है, पार्शल फंडोप्लाइकेशन, या फिर अब एक नया प्रोसीजर निकला है पर ओरल एसोफेजियल मायोटमी, पोएम उसे कहते हैं, पर ओरल एसोफेजियल मायोटमी। वो भी एक पता नहीं सब म्यूकोजा से पैसेज बना के और फिर वो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के फाइबर्स हैं ना सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, उनमें कट लगा देते हैं इस तरह से ना, फिर वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। या फिर न्यूमेटिक एसोफेजियल डायलिटेशन वो भी किया जाता है कि उसमें एक बलून एंडोस्कोपिकली रख के फिर उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, लेकिन उसमें ख़तरा होता है एसोफेजियल परफोरेशन का। ठीक है। तो ये जो है काफ़ी रेयर किस्म का केस था, तो मैंने कहा ये आपके लिए मैं कर लेती हूँ प्रिपेयर। तो प्लीज़ आप ज़रूर पिछला मैंने जो किया था हाइपोपैथाइडिज्म, तो उसके बारे में कुछ लिखें आप लोग, और ये एक्लेजिया इंशाल्लाह आप लोग सुन लीजिए और इसको फिर देख लीजिएगा। थोड़ा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसकी स्लाइड बना दूँगी। ठीक है, बस इतना काफ़ी अगर आपको आता है तो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।